Assalamualaikum. My name is Ariba Hafiz. I am the member of Group 8. My group members are Maham Talib, Samawa Nayab, Ramsha Imtiaz, and Sana Ishfaq Mania Haslam. Today, my topic is about the impact of depression on the academic productivity of university students. Depression is not a war you win, it is a battle you fight every day. First, I want to introduce what is mental health because depression is a part of mental health. Our economical, psychological, and our social well being all contribute to our mental health. It has an influence on how we think, feel, and act. It also influences how we deal with stress, interact with people, and make good decisions. Mental health is essential throughout life from childhood and adolescence to maturity. Why is mental health important for our whole health? Mental health and physical health are equal vital component of our all health. A depressive disorder, for example, raises the risk of several sort of physical health issues, particularly long-term diseases like diabetes, heart disease, and stroke. Similarities, the extension of chronic illness might raise the likelihood of mental illness. How common are mental illness? Nowadays, mental illness are common in every country and everywhere. In more than one in every five adults in the United States suffers from mental disorder. One of the five young people aged 13 to 18 is now has had a significantly harmful mental illness at some point in their lives. What cause mental health illness? Like some examples: sexual abuse, sexual assault, witness violence, biological causes, or chemical imbalances in the brain, use of drugs or alcohol, feelings of isolation or loneliness. How do mental health issues lead depression? Research suggests that depression does not spring from simply having too much or too little of certain brain chemicals. Rather, there are many possible causes of depression, including faulty mood regulation by brain, genetic vulnerability, and stressful life events. Mental health issues with students because of gender discrimination. According to research, social prejudice contribute to mental health issues among sexual minorities, like heterosexual harassment, verbal harassment, verbal threats. Mm, These types of behavior cause gender discrimination depression. How gender can affect mental health? Women between age of 16 and 24 are most three times as likely 26% than men of the same age 9% to encounter a common mental health concern. Women are twice as likely as male to identify as having anxiety. Self harm is reported by 25% of women and 9.7% of male age 16 to 14 are sometimes in their lives. Now I am going to introduce my articles like national articles and international articles. In both articles, we tried to discuss about depression on university students, how they get depressed with their scores, with their academic, with their peer group pressures, and how to control it, and how population affect university students and their challenges about their careers, jobs, and other social problems they face.
Thank you so much. That is all from my side. Assalamu alaikum. I'm Sana Ishfaq. Today the topic of my presentation is doing analysis of a national article which is prevalence of depressive symptoms among university students in Pakistan. So let me start my presentation with the depression. डिप्रेशन एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि वैसे नहीं हो सकेंगे जैसे हम करना चाहते हैं। इस आर्टिकल को स्टडी करने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में जो है डिप्रेशन पाया जाता है और इसकी रेशो काफ़ी खासी हद तक मतलब इसकी रेशो है। और जो फैक्टर्स हमें बताए गए हैं उससे पहला फैक्टर्स है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने वसाइल नहीं हैं कि वो किसी भी सिस्टम को अच्छे तरीके से उस तरह रन कर सकें। लेकिन अगर बात की जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तो इसमें ऐसा होता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को अगर एक मतलब अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जैसा कि मतलब वो सोच रहा होता है तो उसके लिए स्टडी करना फिर उस तरह मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी अच्छी जो है रिसोर्स प्रोवाइड की जाते हैं, मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है स्टूडेंट्स को। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें उस तरह से जो है वो एजुकेशनल सिस्टम्स जो हैं वो फैसिलिटीज़ वगैरह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दूसरा हमारे पास फैक्टर आ जाता है इनसफिशेंट फंड्स। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ मेरिट्स पे होती हैं, कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ये देखा जाता है कि मतलब जैसे कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आजकल चल रहे हैं, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जो आगे मतलब जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी होती है उनके पास इतना बजट नहीं होता कि फिर वो हर स्टूडेंट को जिसने अप्लाई किया होता है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके। और फिर जब कुछ स्टूडेंट्स को जब स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती तो फिर जिसकी वजह से वो जो है डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर ये भी एक वजह बनती है डिप्रेशन की। तीसरे हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। जैसे पिछले साल देखा जाए तो फ्लड्स आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ जो थे वो इसका शिकार हो गए थे और उसकी वजह से भी स्टडीज़ में जो है काफ़ी हर्ज हुआ था। फिर लास्ट वन हमारे पास आ जाता है सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है अगर वो यूनिवर्सिटी जाएगा तो सबसे पहले तो वो मतलब यूनिवर्सिटी जाने से पहले तो मतलब उसने अपना एक माइंडसेट बनाना है कि मतलब हर स्टूडेंट ऐसा ही होता है कि वो अपना एक माइंडसेट बनाता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, वहाँ का कैफेटेरिया बहुत अच्छा होगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होंगे। और मतलब जैसे कि अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि स्टूडेंट्स स्पेशली कि वो कहते हैं कि मतलब एज अ स्कूल और कॉलेज में मतलब जितनी रिस्ट्रिक्शंस स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा इतने मसले नहीं होते हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इतने रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ते। अक्सर लोगों को वो बंक करते भी देखते हैं तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत मज़े होते हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं और उनको अंदाज़ा होता है कि जैसे वो सोच रहे थे सब कुछ बिल्कुल उनकी सोच के बरक्स होता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और फिर ये भी एक वजह बनती है डिप्रेशन की। इसमें फिर देखा जाता है कि इस स्टडी में फिर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स वगैरह यूज़ करके मतलब फिर हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मतलब कितनी % जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनका मतलब डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और इसका इन्होंने हल यही बताया कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि डिप्रेशन स्टूडेंट्स में कम पाया जाए। इसकी वजह मतलब इसको हम ऐसे कम कर सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को। और क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो बहुत मैटर करती है, अगर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो ये भी एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मतलब डिप्रेसिव एलिमेंट बन जाता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मतलब स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको मतलब कोशिश की जाए कि उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा सकें, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इजीली अपने मतलब डिग्री वगैरह कंप्लीट कर सकें और कुछ सीख सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम My name is Mawa Nayab and I am here to present analysis of international article.
Depression is a common mental disorder among adolescents and young adults, linked to family problems, school failure, suicide, substance abuse and absenteeism. अगर मैं इसको खुद बयान करूँ तो मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है जिसकी वजह से लोग मायूसी और उदासी का शिकार हो जाते हैं। जो इस बीमारी के शिकार अफराद होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो सो नहीं पाते और उन्हें कमज़ोरी और थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। This study analyzed characteristics include age, gender, race and living status to predict university student GPA. थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्राइमरी एनालिसिस। द प्राइमरी एनालिसिस यूज रिग्रेशन जो होता है वो एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है टू एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ अनट्रीटेड डिप्रेशन एंड ट्रीटेड डिस्पेरेसिव डिसऑर्डर ऑन GPA। इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करके डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। कि डिप्रेशन अनट्रीटेड डिप्रेशन का मतलब है जिस डिप्रेशन का इलाज नहीं हो पा रहा, तो हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करके उस डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और उन टेक्निक्स को यूज़ करके हम बच्चों को डिप्रेशन से बाहर ला के जो उनका इम्पैक्ट GPA पे हो रहा था वो सही इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस डिप्रेशन सिम्टम्स। 65% स्टूडेंट एक्सपीरियंस डिप्रेशन सिम्टम्स बिफोर द एज ऑफ 18, प्राइमरली कॉज्ड बाय रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लो स्कूल परफॉर्मेंस, फैमिली इशू एंड फाइनेंशियल इशू। इसका मतलब ये है कि जो भी करंट ईयर रेट चल रहा है डिप्रेशन का स्टूडेंट्स में वो 65% है और ये 18 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। और किस वजह से होता है? ज़्यादातर जो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अगर क्लास में सही नहीं है, चाहे वो हमारी स्कूल परफॉर्मेंस हो चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस हो। उसके बाद अगर हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, अगर जैसे कि शादी वगैरह हुई है और उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो GPA पे उसका बुरा, फैमिली इशू हो गए, फाइनेंशियल इशू हो गए, इनकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा होता है बच्चों में। उसके बाद पॉइंट आता है सेल्फ रिपोर्टेड एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसमें आ जाता है कि इन्होंने भी ऑल्सो असेस टू डिटरमाइन द एक्सटेंस टू विच डिप्रेशन एंड अदर हेल्थ डिसऑर्डर अफेक्टेड स्टूडेंट एबिलिटी टू परफॉर्म स्कूल एक्टिविटी। कि इन्होंने भी डिटरमाइन किया है कि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो स्कूल एक्टिविटीज़ में अपनी एबिलिटीज़ को शो नहीं कर सकते। उसके बाद डिज़ीज़ आ जाता है। स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस क्रोनिक डिज़ीज़ में हमारी थकावट की वजह से कुछ बच्चों को हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और दूसरा डिज़ीज़ आ जाता है एक्यूट हेल्थ कंडीशन में आ जाता है कि फ्लू और सर दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, गर्दन का बहुत ज़्यादा दर्द आना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी करियर्स। पॉइंट हमारे पास आ जाता है हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इस पर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है फुल कंप्लायंस विद ड्रग ट्रीटमेंट ऑफन कंबाइन विद साइकोथेरेपी वाज एसोसिएटेड विद अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट GPA। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जो डिप्रेशन का शिकार स्टूडेंट है अगर हम उनको प्रॉपर दवाई दें और उनका साथ में साइकोथेरेपिस्ट के ज़रिए रूहानी इलाज भी करवाएं तो हम लोग डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट इस्टेब्लिश स्पोर्ट्स सर्विसेज एंड इंटरवेंशन टू एड्रेस डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड एनहेंस देयर एकेडमिक रिसाइलेंस। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम अरेंज करें कि बच्चों का इन एक्टिविटीज़ की तरफ भी जहन जाए और वो बिल्कुल असाइनमेंट क्विज़ दे के जो परेशान हुए हुए होते हैं वो यहाँ से निकलें और दूसरी एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो उनको चाहिए कि वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं और वो इन्हेंस द एकेडमिक रिसाइलेंस और वो सारे रिलेटेड होने चाहिए जो उनके प्रोजेक्ट असाइनमेंट या उनके जो काम के रिलेटेड हैं। अगर BBA के स्टूडेंट हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि बच्चे उससे सीख भी लें और उसका इम्पैक्ट भी उन पर पॉजिटिव आए, ना कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। थैंक यू। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। Assalamu alaikum ma'am, my name is Maham Talib. Today's my topic is comparison of both articles. In these articles, depression, its causes and how it affects university students' academic performance are the main subject of both articles. The research for both articles clearly shows what depression is and how it affects the young's mental health. The effects and other significant research findings are examined. बेसिकली इन दोनों आर्टिकल्स में बताया गया है कि डिप्रेशन जो है सबसे ज़्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस पे एक स्टूडेंट के कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। वो यहाँ पे बताया गया है कि जो एक ग्रेजुएट्स होते हैं उन सालों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके जो 4 साल होंगे उसके 4 साल को पेरेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो बच्चा भी खुद
बहुत इम्पोर्टेंट समझता है, क्योंकि उसकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से उसको आगे फर्दर जॉब मिलेगी। और जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि लाइक एक फैमिली है, वहाँ पे वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास मतलब इतना वसाइल नहीं है, डेली वेजेस वर्क कर रहे हैं उसके एक स्टूडेंट के फादर। तो जब वो फादर अपने बच्चे की जो है उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं, तो उसकी फ़ीसें वगैरह पे करते हैं, वो अपना पेट काट के उसकी फ़ीसें वगैरह पे कर रहे होते हैं। फिर जब बच्चा ये चीज़ें देख रहा होता है तो वो डिप्रेशन में जा रहा होता है कि भाई हाँ, मेरे फादर मेरे लिए इतना करें तो मैं पढ़ूँ ज़्यादा पढ़ूँ। एक डिप्रेशन उसका पेरेंट्स की तरफ भी होता है। एज अ मदर्स कहती हैं कि बेटा पढ़ लो, देखो फादर जो हैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। फिर वो उसका दिमाग में डिप्रेस्ड होता रहता है, और ये फिर जीपीए की वजह से भी डिप्रेशन होती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं। और जो बच्चा यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट जीपीए होता है बच्चों का, वो उसमें बच्चे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जो यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं, उनके जीपीए के पीछे और फिर मज़मून, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं जो पहले से बच्चों ने नहीं पढ़े होते, फिर उनको वो उस वजह से भी डिप्रेशन हो रहा होता है कि अब वो ये सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ें, इनको कैसे कवर करें। ये सब्जेक्ट तो उनके लिए न्यू होते हैं, हर सेमेस्टर में हर एक कोई सब्जेक्ट उनके लिए न्यू होता है। जैसे डिग्री जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उनको होल सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तो इस वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। According to the studies in the international articles, there are significant difference between national and cultural contexts. The United States also intends to investigate the determinal effects of depression through national articles of conduct. The study of the most prevalently and severely affects mental disorder is one in which university students, particularly freshmen, and heavily involved. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट, जैसे कि करें फ्रेशली मैन, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें My next slide is similarities in both articles. First similarity है large sample डेटा। ये इसमें ये बताया गया है कि दोनों जो है नेशनल और इंटरनेशनल का डेटा है कलेक्ट किया गया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से। फिर उनकी प्रेजेंस की जो है एक पिक्चर खींची गई है कि भाई एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जीपीए पे और डिप्रेशन पे, उनके दिमाग पे, मेंटल हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होती है। Here is the study collected data from a diverse range of universities and had a large sample size, resulting in a representative samples. Academic performance among university students in the country is depicted in this graph. The second point is reliable depression measures. In both articles, the study used a well-established and valid depression measure, ensuring the accuracy of the finding. The study emphasized data from multiple resources using a meta-analysis sources, increasing the funding, reliability, and validity. So my last topic is this in which the article states that the study's findings provide clear evidence of depression's negative impact on student academic achievement. The study emphasized the variation in depression impact on academic performance, providing useful information insight.
इन दोनों आर्टिकल्स में जो है मुताला किया गया है, और वो मुताला जो है तालिबा इल्म के डिप्रेशन के असरात तालीमी कामयाबी मुताले में जो है रोशनी डालता है, उनके मुताले पर रोशनी डालता है। तालीम पर डिप्रेशन का असर कारकर्दगी के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं डिप्रेशन के GPA की वजह से। जो है बच्चे डिप्रेस्ड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अच्छे तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सकते, GPA भी नहीं लेते और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। फिर बच्चा ऐसे चीटिंग की तरफ हो जाता है, और फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी डिप्रेशन दे रहे होते हैं, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से। और फिर समटाइम्स कुछ बच्चों में ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं जो डिप्रेशन की वजह से कहते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ दें, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से भी दूर होते जा रहे हैं। This is on my side. Thank you. This is me, Maniha Aslam, and I'm going to present a difference in national and international articles. The first one difference, that is limited generalization and limited data on a specific country. Limited generalization means with the study conduct in the US and the finding may not be apply a university student in other country. That's mean कि जो findings है इस नेशनल आर्टिकल्स की, वो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं ओनली यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही जो है कंडक्ट की गई है, नॉट अदर कंट्रीज़ जो है उसको यूज़ नहीं किया गया। द नेक्स्ट इज़ लिमिटेड डाटा ऑन अ स्पेसिफिक कंट्री। इट्स मीन कि जो मेटा एनालिसिस जो हैं जो रिवील करते हैं डिप्रेसिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस इन डिफरेंट कंट्री, बट इट इज़ इनसफिशेंट डाटा। मीन्स कि जो स्टडी जो रिवील्ड किया है डिप्रेशन के इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, ये कहते हैं कि जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा इंसफिशेंट है। डैट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा जो है वैल्यूएबल नहीं है। द सेकंड डिफरेंस, डैट इज़ अ लैक ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। मीन्स कि जो इस रिसर्च को रिलाइट करने के लिए जो डाटा यूज़ किया गया, डैट इज़ अ क्वान्टिटेटिव डाटा। इसके अंदर जो है लैक ऑफ क्वालिटेटिव डाटा है, और जो इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन की गई है, रिसर्च की गई है, वो इतनी लिमिटेड है, ठीक है, विद रिलेटेड टू डिप्रेशन of student and the impact of academic performance of those university students. The second topic, that is a recommendation. The first recommendation is make a mental health resources available to students. It's mean कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर किया जाए ताकि स्टूडेंट उसे इजीली एक्सेसिबल कर सकें। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, इसके लिए काउंसलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, और एक सपोर्टिव ग्रुप हो जो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करे, और इसके साथ साथ ऑफ कैंपस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए, जिससे स्टूडेंट जो है वो इजीली मोबाइल फ़ोन से अपने नेबर से या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सके रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज़। द सेकंड इज़ दैट इज़ अ फोस्टर एक्सक्लूसिव मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशन, रेज द अवेयरनेस एंड मिनिमाइज स्टिग्मा बाय ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन, वर्कशॉप एंड सेमिनार। इस मीन के मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है कन्वर्सेशन की जाए और अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, मिनिमाइज़ किया जाए स्टेमिना बाय ऑर्गेनाइज द कैंपेन। इसके साथ साथ वर्कशॉप हो, सेमिनार हो जो है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ जो है वो बातचीत करें और उससे रिलेटेड जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ जो है अवेयरनेस हो, वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो जो रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ जो है स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और उन्हें बताएं कि आपने किस तरह ओवरकम करना है। The third is collaborate with the outside resources. For the partnership with the regional mental health specialist and organizing to provide extra seminar or support services, means कि ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूट की पार्टनरशिप होनी चाहिए रीजनल मेंटल सर्विसेज के साथ, हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ, इसके साथ सपोर्टिव सर्विसेज के साथ जो स्टूडेंट्स को जो है गाइड कर सकें, ठीक है, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ सर्विसेज दे सकें, ऑन कैंपस सर्विसेज भी दे सकें, ऑफ कैंपस सर्विसेज भी दी जाए, और उन्हें बताएं कि किस तरह जो है इसको ओवरकम
करना है देन, और इसके साथ साथ जो है एंड स्टूडेंट मे हैव टू एक्सेस अ वाइडर वेराइटी ऑफ सर्विसेज एंड असिस्टेंट टू ऑल्टरनेट एज अ रिजल्ट। द फोर इज़ अडॉप्ट फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़। इट्स मीन कि स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ की फैसिलिटेट किया जाए, रिक्वायरमेंट की जाए, और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल अटेंडेंस जो है उसकी रेगुलेशन की जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए और इसके साथ वो टेक्निक यूज़ की जाए जो स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए जो बहुत ज़्यादा जो है गुड है। फर्स्ट वन इज़ अ प्रमोट वर्क लाइफ एंड बैलेंस एंड पर्सनल एकेडमिक एंड लेजर टाइम एंड प्रमोट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इट्स मीन के वर्क लाइफ को जो है प्रमोट किया जाए, इसके साथ साथ इनकरेज किया जाए वर्क लाइफ बैलेंसेस को, पर्सनल एकेडमिक को, लेजर टाइम को और मैनेजमेंट स्किल्स को जो है उसको पे प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ एकेडमिक ऑब्लिगेशंस इनकरेज student to engage in hobbies, socialize and pursue interest outside of their school's work while they're promoting a management skill. Assalamu alaikum. My name is Ramsha Imtiaz and today's my topic of presentation is solution to overcome depression. The first one is boost mental health service, make investment in counseling centers with enough skilled staff members and other mental health services on campus. इसका मतलब है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में जो है काउंसलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे हमारे पास स्किल्ड स्टाफ मेंबर्स हों ताकि वो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के साथ डील कर सकें और उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। The next point is establish peer support programs with trained student volunteers who can offer first help and pointers to the right resources. इसका मतलब है कि हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर और सेकेंडरी प्राइमरी लेवल्स पर पीर सपोर्ट प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स अपने पीर से ज़्यादा लिंक्ड होते हैं तो वो एक दूसरे के इश्यूज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और उनको बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकेंगे कि वो कैसे उनके साथ डील करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट लेसन्स ऑन मेंटल हेल्थ इनटू द करिकुलम। It means include lessons on issues like stress management, self-care and coping mechanism in the curriculum to promote mental health and well-being. Next point is foster an atmosphere of open communication by encouraging employees, students and professors to talk about mental health issues. इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आने चाहिए जहाँ पर वो अपनी स्टोरीज़ को, अपने इश्यूज़ को जो है ओपनली डिस्कस कर सकें और ताकि हम उनको अच्छे वेज जो हैं किससे वो ओवरकम कर सकते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को वो रिकमेंड कर सकें। The next point is faculty and staff education. It means educate them about the importance of mental health, how to spot symptoms of distress and how to act properly. The next point is launch educational programs about mental health to inform students about how to manage their stress and the tools that are accessible. इसका मतलब है कि हमें ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो यूज़ करने चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया, पोस्टर्स, सेमिनार्स और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हमें जो हैं कंडक्ट करने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल्स पर ताकि स्टूडेंट्स को अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता लग सके और उनको ये जान सकें कि वो ऐसी सिचुएशंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं। In the end, I want to conclude that university students' mental health is a serious issue that has to be addressed in a right way. This demographic has acceptably a high rate of health problem which has an impact on both their academic performance and general well-being. Universities must try to reduce stigma around mental health and develop a comprehensive strategy that includes early detection and prevention in order to address this issue. This is all from my side. Thank you.